اب خبر شامل کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے 104 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب بھر میں 176 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 3316 مصدقہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی مچھر کے وار تیز ہونے لگے۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 104 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صبح بھر میں 176 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزارت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 8003 کنفرم مریض سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 3316 تک جا پہنچی۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 95 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 53 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب نے ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہریوں کو محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ضلع انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کی UC 98 فالکن کالونی میں ڈینگی ٹیموں کی سرپرائز چیکنگ۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ کا UC 36 میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ۔ متاثرہ مریض کے گھر اور اطراف میں ڈینگی سپرے کروایا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کی UC 98 فالکن کالونی میں ڈینگی ٹیموں کی سرپرائز چیکنگ کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ کا UC 36 میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا گیا۔ متاثرہ مریض کے گھر اور اطراف میں ڈینگی سپرے بھی کروایا گیا ہے۔ خبر آپ کو دیں، ڈینگی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کی UC 98 اور فالکن کالونی میں ڈینگی ٹیموں کی سرپرائز چیکنگ کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ کا UC 36 میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا گیا اور متاثرہ مریض کے گھر اور اطراف میں ڈینگی سپرے بھی کروایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کی UC 98 فالکن کالونی میں ڈینگی ٹیموں کی سرپرائز چیکنگ کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں، ضلع انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کی UC 98 فالکن کالونی میں ڈینگی ٹیموں کی سرپرائز چیکنگ۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ کا UC 36 میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ۔ متاثرہ مریض کے گھر اور اطراف میں ڈینگی سپرے کروایا گیا۔ ضلع انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کی UC 98 فالکن کالونی میں ڈینگی ٹیموں کی سرپرائز چیکنگ۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ کا UC 36 میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ۔ پنجاب کے تمام DHQ اور THQ اسپتال میں ہیلتھ ویک کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے 5 لاکھ افراد کی اسکریننگ کی جائے گی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C اور ایڈز کی مفت اسکریننگ اور ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے آج سے ہیلتھ ویک کا انعقاد کر دیا گیا ہے، جو کہ 26 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔ 8 بیماریاں اس میں شامل ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C، TB ہے، ایڈز ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی بھی اسکریننگ کی جائے گی اور 2 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر میاں میر ہسپتال کے اندر جو سینٹر ہے مین یہ بنایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر کے جو DHQ THQ ہسپتال ہے یہاں پہ جو سہولیتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ اب شہریوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ افراد آگے اپنی جو اسکریننگ ہے یہ کروائیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جن بیماریوں میں لوگ جو ہے یہ پازیٹیو آئیں گے تو ان کو موقع پر ان کی رجسٹریشن کی جائے گی، مفت میں ادویات فراہم کی جائے گی اور مزید جو ٹیسٹ ہیں یہ بھی کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے سیکرٹری صحت پنجاب علی جان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے یہ جو اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں، اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب بھر کے جو DHQ ہسپتال ہے یہاں پہ طبی سہولیات کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی مریض ہسپتالوں میں آئے ان کو تمام تر جو بہترین طبی سہولیات ہے یہ میسر آ سکے۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، فیول کی کمی کے باعث PIA پروازوں کی معطلی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں بے چینی۔ بیرون ملک وفات پانے والے پاکستانیوں کی میتوں کی پاکستان واپسی میں مشکلات۔ ریاض سے 5 پاکستانیوں کی میتوں کو پاکستان نہ پہنچایا جا سکا۔ تفصیلات کیا ہے؟ محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے۔ کیونکہ PIA کا جو معاہدہ لاسٹ ٹائم ہوا ہے پچھلے ہفتے، اس میں یہ درج کیا گیا تھا کہ ہر روزانہ کی بنیاد پر یومیہ جو ان سے وہ 10 کروڑ روپے ادا کرنا ہوگا،
क्योंकि 2 छुट्टियां आ गई, हफ्ता और इतवार वाले दिन बैंक बंद होते हैं, जिसकी वजह से PIA बर वक्त अदायगी नहीं कर सका। लेकिन अभी कुछ देर में अदायगी हो जाएगी। जो यौमिया इनका डिसाइड किया गया पैसों का, उस सूरत के अंदर जो सा वो फ्यूल की सप्लाई जो सी परवाजें रूटीन भी हो जाएंगी, जिसमें रियाद में फंसी जो परवाज है अगर वो पाकिस्तान आती है तो 5 मैयतें वो साथ लाएंगी जो मुख्तलिफ शहरों की है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। दूसरी जगह PIA किसी भी मैयत का किराया वसूल नहीं करता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जितनी भी पाकिस्तानियों की मैयतें लाई जाती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो PIA टॉप पे जो फ्री मैयतें पाकिस्तान लाता है, यूरोप अमेरिका हो, लेकिन उस साइडों पर क्योंकि इनके रूट्स बंद है, बरतानिया ये भी पिछले दिनों इनके रूट्स बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना था। लेकिन अगर दीगर एयरलाइनों की बात की जाए, उस सूरत के अंदर निजी एयरलाइनें सऊदी अरब से तकरीबन 5,000 सऊदी रियाल लेते हैं, 4 से 5,000 दो तकरीबन पाकिस्तानी 4.5 से 5 लाख रुपए बनता है। इसी तरह दुबई से मैयत लाने पे 4,000 दिरहम अखराजात हैं। अमेरिका यूरोप से मैयत लाने पे 25 से 35 लाख अखराजात हैं। ये अब तक जो है अगर माहाना बात की जाए तो सऊदी अरब से सिर्फ 50 मैयतें फ्री ला रहा है हर माह जो पाकिस्तानियों की लाई जाती हैं, और उनकी तस्वीर जो सी है फर्स्ट ऑपरेशन रखी जाती है कि वो पाकिस्तान में हो। दीगर अगर बात की जाए हज उम्रा पर, तो जो उम्रा ज़ायरीन है उनकी मैयतें वहीं रहती हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत ला के मुताबिक हज उम्रे की मैयतें जो सी वो पाकिस्तान नहीं भेजते, वो उनकी तस्वीर की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन जो लोग वर्क वीज़ों पे काम करते हैं। ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए। अब लाहौर में जैतून की काश्त की जाएगी। PHA को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। PHA ने 250 एकड़ के बाग में जैतून की काश्त का मंसूबा बना लिया। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर 9 एकड़ रकबे पर मुहित कमर्शियल नर्सरी भी कायम की गई है। मजीद जानते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, आगाह कीजिएगा, अब लाहौर में जैतून की भी काश्त की जाएगी? जैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा, अब लाहौर में जैतून की भी काश्त की जाएगी? ये पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का सामना है और हुकूमत की तरफ से फंड जारी ना होने से भी इंतजामी तौर पर जो अमूर हैं वो चलाना मुश्किल है। तो PHA को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए ये फैसला किया गया है कि शहर लाहौर में पहली बार काश्तकारी के जरिए भी रेवेन्यू के हसूल को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से शहर लाहौर में अब जैतून भी काश्त किया जाएगा। PHA को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए ये प्लान तैयार कर लिया गया है। PHA ने 250 एकड़ के बाग में जैतून काश्त का मंसूबा बनाया है और हुकूमती फंडिंग पर इन्हिसार कम करने के लिए ये माली खुद मुख्तारी का इदारा जाती जो मॉडल है वो अपनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से एक तो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर 9 एकड़ रकबे पर मुहित कमर्शियल नर्सरी कायम कर दी गई है, जहां पर शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त और जो फूलों के पौधे हैं वो मुख्तलिफ निरकों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। अब ये एयरपोर्ट के नजदीक 250 एकड़ के फ्रूट गार्डन में जैतून के दरख्त लगाने की तजवीज ज़ेरे गौर है। प्लान ये बनाया गया है कि जैतून की काश्त को कारोबारी बुनियादों पर इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत की जा सके। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे जैनुल आबिदीन। खबर ये है, पंजाब सोशल सिक्योरिटी पैसिका नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत जारी। पंजाब भर में नादहिंदगान से अब तक 340 मिलियन रुपए वसूल कर लिए गए। तफसीलात आतिफ परवेज से जाने का। आतिफ, क्रैकडाउन किया गया है, क्या अपडेट्स हैं? पंजाब सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जो नादहिंदगान है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवाई उनके खिलाफ एक्शन जो है वो तेज करने का फैसला किया गया। इस हवाले से कमिश्नर पैसी की जानिब से तमाम डायरेक्टरेट को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं और जो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में सदरात से ज़ेर इल्तवा नादहिंदगान से अब तक 340 मिलियन रुपए वसूल किए गए। पंजाब भर में हर एरिया ऑफिसर के एरिए से 50 बड़े नादहिंदगान से वाजिबात की वसूली अमल में लाई जा रही है, कहना है कमिश्नर का। इंडस्ट्रियल यूनिट, हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट स्कूल, होटल और दीगर कमर्शियल यूनिट से वाजिबात की वसूली की जा रही है। पंजाब भर से रोजाना की बुनियाद पर नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी मौसूल की जा रही है। मजदूर खुशहाली मुहिम में पंजाब सोशल सिक्योरिटी की तस्लीम करदा खुसूसी टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। वर्कर्स तक इनके जायज़ हक पहुँचाने के लिए तमाम मसाइल बेहतर लाए जाएंगे। ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए।
आपको बताएं महंगाई के वार लगातार। प्याज 110, टमाटर 140, लहसुन 580, अदरक 1020 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 150, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। अनार बदाना 800, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। मजीद जानते अब्दुल कादिर से जो इस वक्त सिंहपुरा में ही मौजूद है, सब्जी मंडी में मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। महंगाई के हवाले से आपको अपडेट करें कि महंगाई के वार लगातार जारी हैं। प्याज 110 रुपये हो चुका है, टमाटर 140, लहसुन 580, अदरक 1020 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे हैं। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा क्या भाव तो हैं आज? आज बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों में प्याज आज मार्केट में दर्जा अव्वल का जो मियारी प्याज है वो 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 120 से 140 रुपये, जबकि लहसुन जो है 580 रुपये फ़ी किलो और अदरक जो है 1000 रुपये से लेकर 1020 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि फलों के हवाले से जो बात की जाए तो दो फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सेब काला कोल्लू 5 रुपये महंगा करके 210 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही सेब जो है 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पोल्ट्री मसनूआत में अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अंडों की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही है। आज मज़ीद 1 रुपया बढ़ाकर 322 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन ये सरकारी रिलीज़ की कीमत है क्योंकि मार्केट में जो अंडे हैं वो 330 से जो है वो 340 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि महंगाई कितनी बड़ी है? हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो जा रही है। प्याज भी वो भी महंगा हो रहा है, जो आलू है वो भी महंगे, मोहल्लों में 120 रुपये 40 रुपये किलो। ये बात तो नहीं है। हमारी जो दिहाड़ी है वो हम 700-800 रुपया वो शाम तक पकड़ते हैं। वो तो घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, तो वो कुछ भी नहीं। सब्जी पे गुजारा कर रहे हैं। पैसे होंगे तो ब्लाइलर खिलाएंगे ना, गोश्त खिलाएंगे, वो सब फल खिलाएंगे। एक आम आदमी के लिए सब्जियों की कीमत पूरी करना मुश्किल हो रही है। फल गोश्त खाना जो है वो बाद की बात है। जो सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी है तो यहाँ पर भी सरकारी रिलीज़ों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हर दुकानदार, हर आढ़ती का अपना रेट है, जबकि सरकारी रिलीज़ जो हैं उन पर शहरियों को मियारी सब्जियाँ और फल बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। उधर कच्चा जेल लोड की बहाली का मंसूबा। एसी मॉडल टाउन का कच्चा जेल लोड का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने कहा कि LWMC के मुलाजमीन ने कच्चा जेल लोड की सफाई मुकम्मल कर ली है। MCL ने कच्चा जेल लोड पर तजावजात के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कच्चा जेल रोड की बहाली का मनसूबा है। इसी महकमे ने टीमों के हमरा यहाँ से पहुंची, जहाँ पर कच्चा जेल रोड की बहाली के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों ने फील्ड में पहुंच से काम शुरू किया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर गुज़श्ता शाम कच्चा जेल रोड का दौरा किया, जहाँ पर हिदायत जारी की गई थी। इस वाले से स्पेशल कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने LWMC की सफाई वर्कर्स ने कच्चा जेल रोड की सफाई को मुकम्मल करवाया है। इस वाले से उनका ये कहना है कि बाकायदगी से सफाई के लिए शेड्यूल तैयार किया गया है। कंटेनर्स लगाने के लिए जगहों की निशानदेही कर ली गई है। इस वाले से सी मॉडल टाउन ने की सफाई में कच्चा जेल रोड ताजरान से मुलाकात भी की है, इंतजामी इक़दामात को सराहा भी है। MCL ने इंतज़ामी तजावुज़ात विंग में कच्चा जेल रोड पर तजावुज़ात खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक वार्डन तैनात किए जा रहे हैं, जबकि वासा की हैवी मशीनरी ने कच्चा जेल रोड पर एरिया में डिसिल्टिंग भी शुरू कर दी है। कमिश्नर लाहौर ने कच्चा जेल रोड पर सफाई, ट्रैफिक रवानी व तजावुज़ात खत्म करवाने की हदायत कर रखी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। यहाँ पर आपको बताएं, फूड सेफ्टी टीमों ने लाहौर डिवीजन में 126 दलिया यूनिट्स का मुआयना किया। ममनुआ अज्जा की मिलावट पर एक यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। नाकिस अशिया के इस्तेमाल पर कई यूनिट्स को जुर्माने किए गए। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि खुराक की तैयारी में ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल मैदे और आंतों के अमराज में मुब्तला कर सकता है। फूड अथॉरिटी कावानीन के मुताबिक हर किस्म की अशिया खुरोनोश को चेक किया जाता है। खुराक में मिलावट करने वालों का कारोबार बंद कर दिया जाएगा। महकमा वासा में अफसरान के तकर्रुर तबादले। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू गुलबर्ग टाउन मुर्तज़ा हसन को डायरेक्टर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फनाज मियां मुनीर से डायरेक्टर रेवेन्यू का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू गुलबर्ग टाउन आसिम मुनीर को ऑन पे स्केल पर डिप्टी डायरेक्टर गुलबर्ग रेवेन्यू का चार्ज मिल गया। MD वासा के हुक्म पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
तो खबर ये है, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा से काज़िस्तान के एहसासी कौंसलर जनरल राव खालिद की मुलाकात। लाहौर और काज़िस्तान के दरमियान तालीमी इदारों के राबतों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने काज़िस्तान के एहसासी कौंसलर जनरल लाहौर को खुशामदीद कहा। तफसीलात क्या है, इमरान अकबर से जानेंगे। इमरान, अहम मुलाकात हुई है, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुलाकात हुई है कमिश्नर और मोहम्मद अली रंधावा से काज़िस्तान के एजाजी कौंसलर जनरल राव खालिद की, और इस वजह से इस्तकबाल किया गया कमिश्नर लाहौर की तरफ से। एजाजी कौंसलर जनरल लाहौर ने कमिश्नर लाहौर को काज़िस्तान के कौमी दिन की निस्बत से लाहौर में प्रोग्राम में शमूलियत का दावतनामा पेश किया। कमिश्नर लाहौर के साथ कौंसलर जनरल ने लाहौर और काज़िस्तान के दरमियान तालीमी इदारों के रास्ते के बारे में तबादला ख्याल किया। इसी सिलसिले में काज़िस्तान के एजाजी कौंसलर जनरल ने काज़िस्तान के कौमी दिन 26 अक्टूबर पर कौंसलेट के ज़रिए तमाम प्रोग्रामों के बारे में आगाह भी किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर तालीमी इदारों का शहर है, तारीख, अदब और सकाफत का अमीन शहर है, जबकि काज़िस्तान के कौमी दिन पर लाहौर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। जी ठीक है इमरान अकबर, आप मुलाकात का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब पर इस्ताल अंगेज गुफ्तगू का केस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। पेशी के बाद मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा, अवाम को यकीन है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। मरियम औरंगजेब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल ने समाअत की। अदालत ने मुकदमे की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टीवी प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, हर दौर में ऐसे मुकदमा दर्ज होते हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि अवाम को यकीन है पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। मुल्क अब किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। दौरान समाअत लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ अदालत में पेश न हुए और उनकी हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की गई। अदालत ने एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। तो आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल को लखपत का दौरा। मोहसिन नकवी ने मर्द और ख़वातीन कैदियों से बातचीत की और मसाइल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी का कैदियों की दरख्वास्त पर आंखों का फ्री ऑपरेशन कराने का हुक्म। गुजरात के रिहायशी कैदी को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए गुजरात जेल में मुंतकिल करने का हुक्म। बुजुर्ग ख़वातीन कैदी अपने केस बताते हुए आप दीदा हो गई। तो अहम खबर है ये, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। मोहसिन नकवी ने मर्द और ख़वातीन कैदियों से बातचीत की और मसाइल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी का कैदियों की दरख्वास्त पर आंखों का फ्री ऑपरेशन कराने का हुक्म। गुजरात के रिहायशी कैदी को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए गुजरात जेल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। बुजुर्ग ख़वातीन कैदी अपने केस बताते हुए आप दीदा हो गए। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जलाओ घिराव के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आ गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम मोहम्मद आजम के पेश न होने पर इश्तहार जारी कर दिया है। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर ये कहते हैं, नवाज शरीफ का मिसाली इस्तकबाल खुशहाली की निशानी है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान नूर। 2018 में लीगी रहनुमाओं की रैली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जलाओ घिराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबरगुल खान ने समाअत की। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद आजम के पेश न होने पर इश्तहार जारी कर दिए। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर समेत दीगर मुलजिमों के खिलाफ समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। सैफ खोखर, अफजल खोखर, शफीक खोखर समेत दीगर ने अदालत पेश होकर हाजिरी लगाई। पुलिस ने 2018 के मुकदमे में मुलजिमों को बेगुनाह करार देकर अखराज रिपोर्ट बनाई। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सैफुल मुल्क खोखर ने अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे 2017 में अल्लाह ताला ने कामयाबियां दी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया। इंशाअल्लाह अब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को एक कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। अदालत ने सैफुल मुल्क खोखर समेत दीगर को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन एक्ट में ताहात
नाअहली कानून में तरमीम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बेलाल ने शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम के बाद ताहयात नाअहली की मुद्दत को ख़त्म करके 5 बरस कर दिया गया। अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इक़दाम कारदम करार दे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि तरमीम असम्बली में हुई, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की मोहलत देने की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। अल खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीनियों की खिदमत में पेश पेश है। गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान के 13 ट्रक रवाना कर दिए गए। जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन सैयद वक्कास जाफरी ने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर सामान भिजवा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राहील अली से। जी राहील। खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम जो गज़ा के मासूम जो फ़लस्तीनी हैं उनकी इमदाद के लिए जो है वो आज पाकिस्तान से पहली खेप जो है वो रवाना की जा रही है। मैं मौजूद हूँ खिदमत फाउंडेशन के मरकज़ी हेड ऑफिस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 13 ट्रक जो हैं वो तैयार किए गए हैं जो गज़ा भिजवाए जाएंगे ताकि वहाँ पर इसराइल की जो बमबारी जारी है, जो नुकसान हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो बुनियादी जो सहूलियात जो हैं वो आवाम को फराहम नहीं की जा रही, तो यहाँ से जो है वो चीज़ें जो हैं वो भेजी जा रही हैं ताकि वो जो फ़लस्तीन के मासूम शहरी उन तक ये चीज़ें पहुँचाई जा सके। हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी खिदमत फाउंडेशन के वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे ये बताएं जो सामान भिजवाए जा रहे हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें? बुनियादी तौर पर तो मेडिसन है, यानी ज़रूरी अद्वियात जान बचाने वाली, उसके साथ साथ कैंड फूड है कि जो ज़रा, और ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए हाइजीन किट और जो है कि बेबी किट मौजूद है। तो गोया हम समझते हैं कि ये बुनियादी सामान है कि जो जितना जल्दी मुमकिन हो ये भेजा जा सके। तो इस वक्त जो है ये 13 ट्रकों के अंदर हम ये सामान, ये पहली कंसाइनमेंट है। ज़ाहिर हमें जितनी एनडीएमए ने कहा है तो उसके हम समझते हैं कि हम तो ये चाहेंगे कि ये पूरी चेन बन जाए कि यहाँ से हम रोज़ाना, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हम रोज़ाना 13 ट्रक भेजें यहाँ से। आपने उनकी बात सुनी कि ज़्यादातर मेडिसिन और ऐसी चीज़ें भेजी जा रही हैं जो वहाँ की बुनियादी ज़रूरत है, जो कहा गया है, जो वहाँ से डिमांड आई है ताकि वहाँ की जो ज़रूरियात हैं शहरियों की वो पूरी की जा सके। 5 मुख्तलिफ पार्टनर तंजीमों के तहत जो है वो यहाँ से सामान भिजवा रहे हैं जो पहले मिस्र जाएगा और उसके बाद जो है वो गजा के मासूम शहरियों में तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। को बताएं सेशन कोर्ट में तालिबा से ज्यादती के केस पर समाअत हुई है। अदालत ने मुजरिम शेख आमिर को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। एडिशनल सेशन जज नवीद अंजुम सलीमी ने केस पर फैसला सुनाया है और मुलजिम के खिलाफ ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा थाना डिफेंस बी में मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा इस समाअत के बारे में। जी, सेशन अदालत ने नहम क्लास की तालबा के साथ ज्यादती करने के केस का बड़ा फैसला जारी किया है। अदालत ने मुजरम शेख आमिर को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि एडिशनल सेशन जज नवीद अंजुम सलीमी ने इस केस पर फैसला सुनाया। जबकि मुकदमा मदई की जानब से वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए और अदालत ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़म ने अपनी ही नहम क्लास की तालबा के साथ ज्यादती की। मुल्ज़म के खिलाफ 15 गवाहों ने बयानात कलमबंद करवाए हैं। मुल्ज़म के खिलाफ मेडिकल में भी ज्यादती साबित हो चुकी है। अदालत मुल्ज़म को सजा का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़म को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म जारी कर दिया। मुल्ज़म के खिलाफ ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा थाना डिफेंस बी पुलिस ने दर्ज कर रखा था, जिसके बाद मुल्ज़म को गिरफ्तार किया गया और मुल्ज़म को आज जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने जो है मुल्ज़म को इस मुकदमे में सजा का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, एफसी कॉलेज में पीने के पानी के तज्जिए के मरकज़ का इफ्तिताह। पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल के उन्वान पर 2 रोज़ा मुशावरती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। पानी के तज्जिए और पीने के पानी के पायदार दस्तयाबी पर शुरा का तबादला ख्याल। पंजाब आबे पाक अथॉरिटी और एफसी कॉलेज वाटर सेंटर के माबैन माफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। कोरिया के सफ़ीर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन की भी तकरीब में शिरकत। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है, अपडेट करेंगे। जी ज़ैन, कहिए। ये एफसी कॉलेज में पीने के पानी के तज्जिए के मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब आबे पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, जबकि पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल के उन्वान पर 2 रोज़ा मुशावरती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पानी के तज्जिए और पंजाब में पीने के पानी के पायदारी दस्तयाब पर शुरका ने तबादला ख्याल किया। बाद
पंजाब आब पाक अथॉरिटी और FC कॉलेज वाटर सेंटर के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए, जिसमें इस अज़्म का इजहार किया गया कि पानी के शोबे में पंजाब आब पाक अथॉरिटी और FC कॉलेज मिलकर काम करेंगे। पानी के शोबे में आला पेशा वाराना खिदमात के सबब सैयद जाहिद अजीज को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। इस मौका पर CEO आब पाक अथॉरिटी का कहना था कि तालीमी इदारों में पीने के पानी पर काम करना खुशाइंद है। आबादी के तनासुब से पंजाब में पानी के मंसूबों पर बेपनाह काम की जरूरत है। पाकिस्तान की तमाम वाटर यूटिलिटीज, पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। LDA में गैर कानूनी कामों की शिकायत करना आम शहरियों के लिए मसला बन गया। सूबाई मुहतसिब का LDA में दरख्वास्त कुंदगान से नारवा सलूक पर नोटिस। सूबाई मुहतसिब ने LDA से 24 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेज दिया। LDA से दरख्वास्त वसूली में मुबैना ताख़ीर पर जवाब तलब कर लिया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से अपडेट जानेंगे। ज़ैन बताइए। LDA में इस्लाहात लाने के लिए और LDA के गैर कानूनी अमूर की निशानदही करने के लिए जो दरख्वास्त कुनिंदगान हैं उनका LDA में दरख्वास्त जमा करवाना ही मुश्किल हो चुका है। LDA में गैर कानूनी कामों की शिकायत करना आम शहरियों के लिए मसला बनता जा रहा है, जिसके ऊपर सूबाई मुअस्सर पंजाब की तरफ से LDA में दरख्वास्त कुनिंदगान से नारवा सलूक पर नोटिस लेते हुए LDA से 24 सवालात पर मुश्तमिल जो सवालनामा है वो भेज दिया गया है, जिसमें LDA से दरख्वास्त वसूली में मुबैना ताख़ीर पर जवाब भी तलब किया गया है। जो हकायक लाहौर न्यूज़ सामने लेके आया है उसमें LDA अफसरान से सवाल किया गया है कि LDA में शिकायत दर्ज करवाने में शहरियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जबकि शिकायत दर्ज करवाने के लिए शहरियों को कौन सा ऑनलाइन पोर्टल फराहम किया गया है। इसके अलावा सूबाई मौसम की तरफ से ये भी सवाल उठाया गया है कि शिकायत दर्ज करवाने और इनके अजाले के लिए आज तक अथॉरिटी में कौन सी इस्लाहात लाई गई हैं, जबकि LDA वन विंडो ऑपरेशन की मुकम्मल कार्रवाई से भी आगाह करने का हुक्म दिया गया है। सवालनामा में ये भी कहा गया है कि LDA में ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए।